So welcome to Smart Accounting classes again. So this is the topic of branch accounting. It is a part of the financial accounting. बुक लोग का जो financial accounting का बुक है, उस बुक का एक पार्ट है, एक चैप्टर है आपका ब्रांच अकाउंटिंग। हम लोग को तो ये तो मालूम हो गया कि ब्रांच अकाउंटिंग इज रिलेटेड टू द अकाउंटिंग प्रोसीड्यूर ऑफ द ब्रांच। ठीक है, अगर अकाउंटिंग प्रोसीड्यूर जानना है तो आप लोगों का ब्रांच का कैटेगरी जानना है। सो एज यू ऑल नो दैट व्हाट डू यू मीन बाय द ब्रांच, दैट इज द मीनिंग ऑफ द ब्रांच। सो ब्रांच होता क्या है? हेडक्वार्टर का एक एक्सपांशन ऑफिस है। इट इज एन एक्सपांशन ऑफिस, इट इज एन एक्सपांशन ऑफिस ऑफ द हेडक्वार्टर। सपोज एक ऑफिस है, उसका हेडक्वार्टर आपका मुंबई में है एंड दैट पर्टिकुलर कंपनी वांट्स टू एक्सपांड द बिजनेस। क्या किया था उन लोगों ने? कलकत्ता में जाके एक ऑफिस खुला है। तो दैट ऑफिस इज नॉट द हेड ऑफिस, that office is the part of the head office. So this part of the head office is known as the branch. ठीक है, is known as the branch. अभी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है। अभी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का मेन ऑफिस कहाँ है? मुंबई में है। अभी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आपका लोकेलिटी में भी तो है, लोकेलिटी तो में भी है। तो ये लोकेलिटी का जो भी स्टेट बैंक है वो ब्रांच है, दैट इज द ब्रांच। तो एक हेड ऑफिस जब अपना बिजनेस को एक्सपांड करना चाहते हैं, व्हेन द हेड ऑफिस वांट्स टू एक्सपांड द बिजनेस, when the head office want to expand the business, in this case the head office opens the various offices in the other places. The head office opens the various offices in the other places. That offices are controlled by the head office, so that offices are known as the branches. Now what is the branch accounting? So branch accounting is the procedure adopted by the head office for the accounting treatment related to the branch. The accounting procedure, the accounting techniques which is used by the head office on the branches, that is called the branch accounting. Now why branch accounting is required? Without branch accounting, the head office never gets to know that what kind of profit or what are the exact profit and what is the exact loss of that particular company है जिसका हेड ऑफिस आपका मुंबई में है और इसका सपोज 5 ब्रांचेस है। जस्ट एज्यूम द 5 ब्रांचेस A, B, C, D and E. There are 5 branches of this particular head office. And if the head office is not maintain the separate account for each and every branches, in this case the head office will never get to know that how much profit earned by the A, how much profit earned by the B, and is there any loss incurring in the offices of C. The head office never get to know. So the information related to the profit or loss, for getting the true picture of profit or loss, the head office maintains a separate books for each and every individual branches. That means the head office will maintain a separate book from a separate account for B, a separate account for C, and a separate account of D and E. Now, what kind of accounting procedures head office will adopt on this B? It depends upon the category of the branches. That what category of branches and how much the branch is bigger. It depends totally on the sizes of the branch. Let's try to understand the meaning of the types of branch. So whenever we talk about the types of branches, so the branch is categorized into 2 categories. That is, one is the home branch, which is known as island branch, and another is the foreign branch. Now what is home branch and what is foreign branch? Home branch means when the head office and the branch are both in the same country, so that branches are home branch. So as for example, suppose the head office of SBI situated in Mumbai, and one of the SBI branch situated in Delhi. So the Delhi branch will be treated as a home branch because the particular organization, that means the SBI head office also located in India. So both in this case, both the head office and the branch, both from India only, same country. So this branch will be known as the home branch. Next one is the foreign branch.
Foreign branch means when the head office, headquarter or head office and the branch are not in the same country. As for example, SBI located in Mumbai, the head office of the SBI is Mumbai, and one of the branch of SBI situated in, suppose, Nepal. So that branch is situated in the country of Nepal. So this branch is treated as a foreign branch. Okay. So depending upon the types of the branch, that is whether it is a home branch or the foreign branch, the accounting treatments are adopted. Now we will talk about the home branch first. When we talk about the home branch, so the home branch is also categorized into two categories. One is the dependent branch and another is the independent branch. Okay. So what is dependent branch? That means the branch which is totally dependent on head office. That means after getting the instruction they will do the work. That is the dependent branch. यहाँ पे मानिए कि sale, purchase, salary, all the things will be provided after getting the information from the branch. जैसे कि डिपेंडेंट ब्रांच में सैलरी भी हेडक्वार्टर से, हेड ऑफिस से भी आता है, मटेरियल भी हेड ऑफिस से भेजा जाता है और सेल भी हेड ऑफिस की इंस्ट्रक्शन से ही होता है. तो इसको बोलते हैं डिपेंडेंट ब्रांच. एंड द इंडिपेंडेंट ब्रांच व्हिच इज नॉट डिपेंडेंट ऑन हेड ऑफिस. तो यहाँ पे देखिए एक ब्रांच है. इस ब्रांच में हेड ऑफिस ने इंस्ट्रक्शन दिया था कि आप लोग बाहर से सामान खरीदिए. यू परचेज द मटेरियल्स फ्रॉम द आउटसाइड, यू मेक इट एंड यू सेल इट, बट योर प्रॉफिट मार्जिन शुड बी प्रोवाइडेड टू अस. आप यही मतलब आप लोगों को जहाँ से मटेरियल का दाम कम पड़े आप खरीदिए, आप खुद का प्रोडक्शन कीजिए, आप उसको सेल कीजिए, लेकिन मेरे को प्रॉफिट इतना चाहिए. सो इट इज नॉट डिपेंडेंट ऑन द head office. It is not dependent on the head office, and they will purchase the material from the outside which is convenient for them. तो वो जहाँ से उन लोगों को कम में मिलेगा वहाँ से वो लोग मटेरियल खरीदेगा, वो लोग प्रोडक्शन करेगा, उसके बाद वो लोग सेल करेगा. तो इसका मतलब है डिपेंडेंट ब्रांच का मतलब होता है कि डिपेंडेंट ब्रांच में ब्रांच हमेशा हेड ऑफिस के इंस्ट्रक्शन पे भी डिपेंड करता है. मतलब वहाँ से अगर मटेरियल आएगा उसके बाद वो मटेरियल उस प्रोडक्ट को सेल करेगा और जो भी पैसा होगा वो साथ ही साथ हेड ऑफिस के अकाउंट में रेमिटेंस करना है. ठीक है. अगर कोई भी खर्चा हुआ तो हेड ऑफिस पैसा भेजने से उस खर्चा को मीट करना भी पड़ेगा. तो इसको बोलते हैं डिपेंडेंट ब्रांच. नाउ व्हाट इज द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट रिलेटेड टू द डिपेंडेंट ब्रांच. डिपेंडेंट ब्रांच और इंडिपेंडेंस ब्रांच का भी अकाउंटिंग प्रोसीड्यूर दूसरा है. सो अकाउंटिंग प्रोसीड्यूर of dependent branch. देखिए अकाउंटिंग प्रोसीड्यूर ऑन द डिपेंडेंट ब्रांच में क्या होता है. यहाँ पे तीन प्रोसीड्यूर फॉलो. पहला तो हो गया आपका डेटर मेथड, डेटर सिस्टम, जिसको हम लोग सिंथेटिक सिस्टम भी बोलते हैं. नेक्स्ट आपका हो गया स्टॉक एंड डेटर सिस्टम, एंड लास्ट में हो गया आपका फाइनल अकाउंट सिस्टम. ठीक है. तो पहला है आपका डेटर सिस्टम जिसका दूसरा नाम है सिंथेटिक सिस्टम. नेक्स्ट हो गया आपका स्टॉक एंड डेटर सिस्टम, एंड नेक्स्ट हो गया आपका फाइनल अकाउंट सिस्टम. तो स्टेप बाय स्टेप हम लोग इसको सीखेंगे. तो पहला सिस्टम आज हम लोग देखेंगे डेटर सिस्टम. डेटर सिस्टम एज द नेम सजेस्ट. देखिए
यहाँ पे कुछ पॉइंट हम लोगों को याद रखना है। डेटर सिस्टम में हेड ऑफिस हमेशा अपना ब्रांच को डेटर समझते हैं। इन डेटर सिस्टम हेड ऑफिस ऑलवेज ट्रीट्स इट्स ब्रांचेस as debtor, the very first one as debtor, debtor से debtor के हिसाब से देखते हैं। नेक्स्ट, the transactions between head office and the branch only recorded in this account। ये जो डेटर सिस्टम में जो भी हम लोग अकाउंट बनाएंगे, जो भी ब्रांच का जो भी अकाउंट होगा, ये ब्रांच के अकाउंट में हमेशा हेड ऑफिस और ब्रांचेस के बीच का ट्रांजैक्शन ही रिकॉर्ड करेंगे। ब्रांच अकाउंट कौन बनाता है? हेड ऑफिस बनाता है। तो हेड ऑफिस जब ब्रांच अकाउंट बनाएगा तो उनके अंदर मतलब हेड ऑफिस और ब्रांच के बीच में जो भी ट्रांजैक्शन होगा वो ही ब्रांच अकाउंट में रिकॉर्ड होगा। नेक्स्ट, नो थर्ड पार्टी ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड हियर। यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं होगा। तो देखिए, अगर हेड ऑफिस और ब्रांच के बीच में ट्रांजैक्शन हो रहा है, इन दोनों के बीच में ट्रांजैक्शन हो रहा है, दिट विल बी रिकॉर्डेड इन द ब्रांच अकाउंट। ये ब्रांच अकाउंट में रिकॉर्ड होगा। ब्रांच और कस्टमर के बीच में अगर कोई ट्रांजैक्शन होता है, वो ट्रांजैक्शन ब्रांच अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं होगा। याद है? नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे अथॉरिटी दिया जाता है। तो अथॉरिटी प्रोवाइडेड टू द ब्रांच, कैश सेल भी कर सकते हैं वो लोग या क्रेडिट सेल भी करते हैं। ब्रांच क्रेडिट सेल भी करते हैं। अगर क्रेडिट सेल हुआ, कस्टमर्स को सेल किया है क्रेडिट में, तो उसका जो भी मनी कलेक्शन होगा वो सेंड करेगा हेड ऑफिस को, वो रिकॉर्ड होगा। लेकिन क्रेडिट सेल बोल के अगर क्रेडिट सेल टू कस्टमर, इट विल नॉट बी रिकॉर्डेड। हाँ, अगर कैश सेल करते हैं तब कस्टमर साथ ही साथ ब्रांच को पैसा देने से ब्रांच वो पैसा हेड ऑफिस को रेमिटेंस करते हैं, तब एंट्री होगा। लेकिन ब्रांच अगर क्रेडिट सेल करते हैं तो एंट्री नहीं होगा। क्रेडिट सेल के अगेंस्ट में फ्यूचर में जाके डेटर से जो पैसा ब्रांच को मिलेगा, वो पैसा जब हेड ऑफिस को सेंड करेगा वो यहाँ पे रिकॉर्ड होगा। ठीक है। सो यहाँ पे देखिए, हम लोग आज इजीली मतलब एक छोटा सा एग्जांपल से समझने की कोशिश किया है कि व्हाट इज डेटर सिस्टम। अब अगले वीडियो में हम लोग इसको इलाबोरेटली सीखेंगे और कुछ प्रैक्टिकल पार्ट्स एंड द जर्नल एंट्रीज भी हम लोग देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही। अगर इस वीडियो को आप लोगों को अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।